Hello everyone, I hope you all are doing good. And thank you for the last session, it was really productive. Thank you for supporting me and coming back to the point. Welcome back to my show, the Lachi Life Show, where we meet experts and the entrepreneurs. So today is our second episode and we'll talk on about the creativity with career. So before going ahead, I am Lachi, daughter of super parents, blessed with 3 siblings, 2 dogs, and a friend of rocking people around the world, and proudly alumni of NIFT Gandhinagar. I help in teenager, youngster, and budding entrepreneur in their business growth, online as well as offline. So talking today about the guest. So boys and girls, allow me to introduce you to the incredibly helpful and compassionate girl of social media. Her unwavering commitment to making a positive impact on social life. Whether it is food information, travel information, and places of different country around the world, full of knowledge and value. She's born with a good habit, which I like the most. She makes everyone happy around her. So please welcome pretty girl, my bestie, Miss Shamina Khatu. Yes. Hi Shamina. Hi everyone. Thank you for having me. And second thing, guys, you have to bear with me just because I lost my voice, but still I have to come here just for her or for myself also. So joining us. Yes. So before going ahead, Shamina, please, I requested you to introduce yourself to know you better. Yeah, I know, as you already told about me so many things, and still thank you. So I know you are my friend, so that is why you know me, but there's so many people who don't know who I am. But yes, hi everyone, hi. So I'm Shamina Khan, as you know, you are in my channel right now, not my channel, my page. So basically, I'm a lab technician also, and side by side, I just influence everyone as much as I can. I have my YouTube channel, I have my Instagram, so जिससे कि मैं आप लोगों से connect हो सकूँ. And I went so many places, जिससे कि I just love photography and I just need to know about curiosity about everything कि यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा. First यही करती है कि नहीं, उस टाइम की पिक्चर्स ना रखनी है मुझे अपने पास as a memory की है. तो और काफी लड़कियों के इंस्टाग्राम्स भी हैं, इसलिए वो पोस्ट करती है वहाँ पे. बट क्या होता है, मुझे ये था कि जैसी चीजें मुझे पता है और मुझे नहीं पता चली थी इससे पहले चीजें, तो मुझे जानना था कि जैसे मेरे जैसे लोग हैं उनको भी ये चीजें पता ऑफ कोर्स होनी चाहिए. So that was Shamina. We'll start one by one. So guys, as I told, she's my best friend. It might not the first question, but I would like to ask this thing first. What are the things for you to do this? Like what do you think? Like अब ये करना चाहिए. So how you start this thing? Like vlogging? Just because honestly मैं बताऊँ, क्योंकि आज के टाइम में अपना टाइम देना बहुत जरूरी है, हर चीज में टाइम देना जरूरी है. ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूंगी आई एम जस्ट एज अ इन्फ्लुएंसर एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुम स्टडीज को छोड़ दो. इट्स मस्ट. ठीक है, यू हैव टू, मतलब हर चीज में वो काम आएगी. जहाँ पे भी आप जाओगे यू हैव टू टेल देम कि हाँ एज अ प्रोफेशनली आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको भी अच्छी अंदर से फील नहीं आती. नाउ आई कैन से ओके आई एम अ लैब टेक्नीशियन आल्सो एंड साइड बाय साइड आई एम डूइंग माय कंटेंट क्रिएट्स एंड आई जस्ट इन्फ्लुएंस एवरीवन हु इज अराउंड मी. ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट कि हम एक जगह में एक कंपनी में अपना 8 घंटा देते हैं, 8 घंटा एज अ वर्क. उसमें जो 2-3 घंटा हमारा ट्रेवलिंग का लगता है, इट इज ऑलमोस्ट अ डे. ठीक है, उसी में हमको अपनी नींद भी निकालनी पड़ती है. जब हम अपने कंपनी को इतना दे सकते हैं, जैसे मेरे को ये चीज हिट करी कि हम अपनी कंपनी को इतना टाइम दे रहे हैं, एज यू नो कि हम अपनी कंपनी को अगर 8 घंटे दे रहे हैं तो वो हमसे उससे 10 टाइम्स ज्यादा काम करवा रहे हैं, कि जिससे उनको बेनिफिट ऑफ कोर्स वो उसी हिसाब से हमको सैलरी देते हैं, हमारे होती है. ठीक है, सेकंड थिंग, हमको ही क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो भी जो स्टार्ट करा उन्होंने भी ऐसे बिगिनिंग स्टार्ट की है. एज अ बिगिनर उन्होंने भी काफी चीजें स्ट्रगल की होंगी, जैसे हाँ मेरे को भी स्ट्रगल होता है. क्योंकि अब मैं एक पोस्ट डाल रही हूँ, कभी कभी उसमें 4 से 5 लाइक आएंगे, 1-2 कमेंट आ जाएंगे, विच इज टोटली ओके, जस्ट बिकॉज आई एम अ न्यू फेस फॉर एवरीवन. ठीक है, कोई मुझे नहीं जानता है, आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी फेस, आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, आई एम नॉट एनीथिंग, स्टिल पीपल आर वाचिंग मी, commenting on my post. It's big deal for me just because I'm a new face for everyone. मेरे अराउंड 3-4 लोग मुझे जानते होंगे, मेरे फ्रेंड्स जानते होंगे, उनके लोग जानते होंगे, that's it. But sometimes मुझे उसी रील में 1 लाख व्यू आ रहे हैं, more than 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, 1000 भी आ रहे हैं, it is more than enough for me. क्योंकि इससे हमको पता चल रहा है कि हर चीज टाइम मांगती है, हर चीज टाइम मांगती है. तो how you manage your time, because everyone knows कि कंटेंट को क्रिएट करने में जो जितना सिंपली दिखता है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है. एज अ कंटेंट क्रिएटर YouTube पे जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग, यू नो. Exactly, I can agree with them, and even I just have to hats off to everyone, every content creators, because it is taking too much time. As Lachi, as you know, कि as a content creator, life is not easy. People is taking like okay, he's a content creator, और एक वीडियो तो डालनी होती है दिन की, but उसके पीछे का स्ट्रगल they don't know. अभी हम अपने घर में we are just chilling our happy zone. ठीक है, we are anything tea or pajama and sitting over there and just chilling out. Okay, but as an influencer we have to just create our mind. Okay, we have to be ready. हमारा ड्रेस सब अच्छा होना चाहिए, हमारे हेयर्स अच्छे होने चाहिए, आगे पीछे की लाइट्स अच्छी होनी चाहिए. As you know कि people is like कि हाँ कोई बात नहीं, इन्फ्लुएंसर इतना एक वीडियो तो डाले. ऑफ कोर्स ये नहीं है कि मैं नहीं बोलती थी, आज के टाइम में जब टिकटॉक आया था तब बोलती यार क्या कर रहे हैं ये लोग, बट नाउ आई कैन फील कि वो उसके पीछे कितना स्ट्रगल होता है. क्योंकि अब एक लाइव सेशन में आना जस्ट फॉर यू, आई एम जस्ट ऑलरेडी आई जस्ट हैव टू से टू यू आई वी हैव सो प्राउड ऑफ यू, यू नो, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, जस्ट बिकॉज इट्स नॉट अबाउट यू आर माय फ्रेंड एज अ ह्यूमन बीइंग, जस्ट बिकॉज एज आई मतलब एज अ बिगिनिंग मैंने देखा हुआ है सारी चीजें कि हाउ यू मतलब
वहां से ट्रेवल करना इट्स नॉट इजी। हम लोग 2 दिन का ट्रेवल करके हमारी हालत खराब हो जाती है कि अब हमको 2 दिन का तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है स्टिल। बट उसमें क्या है, हर चीज के लिए टाइम चाहिए। अब हम ये लाइफ सेशन आने के लिए हमको 10 मिनट पहले रेडी होना पड़ा था कि क्या हमको प्रिपेयर होना है, ये करना है। और ये रियलिटी है, ये सब एग्री करेंगे, जो भी सोशल मीडिया में है वो सब इस चीज को एग्री करेंगे, क्योंकि हर एक बंदा जो यूट्यूब में है या फिर इंस्टाग्राम में है, अब मेरा क्या होता है 7 डे ऑफिस को देना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो मेरी कमिटमेंट है, वो मेरी हॉस्पिटल से कमिटमेंट्स है, वो मैं नहीं डिसएग्री कर सकती, क्योंकि इट्स माय वर्क, इट्स माय प्रोफेशन, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन को छोड़ ही नहीं सकती। एंड एज ए कंटेंट क्रिएटर, एज इन्फ्लुएंसर, ये मेरा पैशन है, ठीक है, विच इज नॉट कि मैं सोचते हुए आई थी, हम बचपन से ये सोचते हुए हम टीचर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम ये बनेंगे, बट हमको नहीं पता कि आगे इन्फ्लुएंस नाम की भी कोई चीज होगी। Samina, like अभी हम लोग like we are on the same age group and your friends and my friends, we all are in a growing stage, right? So as you are on your growing age, तो तुम्हें कभी लगता नहीं है ऐसा कि यार थक गए, कुछ प्रोडक्टिव नहीं आता, छोड़ देते हैं, तो तुम उस पे क्या करते हो? Even So it is like that motivates you to do this continuous because your content is coming day by day, day by day. I thought यार ये रुकती क्यों नहीं है? मैं कभी-कभी सोच लेती हूँ, so how you can manage this thing, the emotion and that feeling. just think about it, just because सब लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि you know क्या होता है, हर हफ्ते में 7 डेज हमको एक वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। ऐसा कि हमको इस चीज की भी टेंशन रहती है, अगर हमने अपने अकाउंट में हमने इतना ग्रो किया है, अगर हम उसको नहीं डालेंगे तो हमको हमारा अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। तो उसमें 10 व्यूज भी आते हैं, 20 व्यूज भी आते हैं, 30 व्यूज भी आते हैं, और जब वो 4th डे में हमारा एग्जैक्टली एकदम से पॉपअप करता है 4.1 के ना, तो वहीं पे तसल्ली मिल जाती है कि कोई बात नहीं, 4 दिन के व्यू नहीं आए तो कोई बात नहीं, एक वीडियो में इतने व्यू आ गए, विच इज मोटिवेटेड सो मच, क्योंकि उन 4 लोगों से सब्सक्राइबर जो बढ़े, कमेंट एक भी आया, इट इज मीन्स अ लॉट, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो गई, फिर मोटिवेट करते हैं, चल कोई नहीं 4 वीडियो और डालेंगे, उसके बाद वाली वायरल हो जाएगी। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो मोटिवेट करना ही पड़ता है, क्योंकि अब हमने इसको एज अ प्रोफेशन ले लिया, तो हमको ऑफिस को टाइम देना पड़ेगा। अब जब जो हमारा टाइम अब गाने सुनने में जाता था, लोगों को देखने में जाता था मेट्रो में कि ओ वाओ ये क्या कर रहे हैं, अब वो वाओ ये क्या कर रहे हैं, तो हमारा ये होता था। अब उस टाइम में हम लोग एडिटिंग में लग जाते हैं, यू नो, कि उस टाइम को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, यू नो, एज यू नो, मेहनत है, इट्स जस्ट अ पार्ट, इट्स 0.1% जो मेरी मेहनत है, उसके पीछे जो माय मेन दिस बैकबोन ना, who's my family, without family I can't see anything. So they are my biggest supporters, my mother, my sisters, my sister-in-law even, and even my brothers. So they are my big supporter. And जो क्योंकि मैं हर एक छोटी से छोटी चीज बोलूंगी ना, कि बस never just like कि ठीक है नहीं तू नहीं कर पाएगी, होता है ना कि कभी नहीं यार अच्छा छोड़ना क्यों नहीं कर पाएगी, let it be, let go, चल छोड़। There's like of course you should try, give it a try. And I'm blessed कि नहीं हम कर सकते हैं, अगर हमारे घर वाले बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि अगर फैमिली साथ है ना, पूरी दुनिया अलग है, तो इट्स इनफ फॉर मी, पूरी दुनिया अलग ही चलेगा, क्योंकि also they are everyone just like I'm just blessed to have all of them in my life, क्योंकि अकेले को क्रेडिट देने का कोई फायदा नहीं है। मैं मेहनत कर रही हूँ, बट उसके पीछे जो अभी मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं एक पोस्ट डालूंगी, मेरा 1 लाइक आएगा, ठीक है, या मेरी फ्रेंड है उसका 2 लाइक आ जाएगा, जो सब लोग देख रहे हैं ना, एक भी बंदा देख के लाइक भी कर रहा है ना, which is enough for me, enough. Yeah. So last but not least, it's an important question you can think or you can just leave. Why you are doing this? So just for a fun or just you have any other purpose to do this? Of course, just because guys even मैं यहाँ पे just because मेरे को ये लाइफ बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना था, ठीक है, just because हम लोग यहाँ पे, आप लोग भी हमको यहाँ पे देख रहे हो, तो आप हम भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, यू नो। सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग काफी इन्फ्लुएंसर को मैंने बोलते हुए देखा है कि हम वी आर जस्ट डूइंग फॉर अ फन। तो क्या तुम अपना एक दिन में 4 घंटे फन के लिए दे सकते हो, जिसमें तुम आराम कर सकते हो? नो गाइस, एवरीवन इज डूइंग फॉर लाइक, आगे ये नहीं पता कि इससे अभी हमको इनकम आएगा नहीं आएगा, जस्ट इट्स लाइक कि फ्यूचर प्लानिंग, यू नो, कि अगर हम अपना टाइम, ये नहीं है कि पैसा इन्वेस्ट करना इज ओनली इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्ट करना इज ऑल्सो वन इन्वेस्टमेंट, जिसमें तुमको लॉन्ग पीरियड में उसका वो मिलेगा। या बिकॉज मैं आप सबको सपोर्ट करूंगी इस चीज में, इवन मोटिवेट भी करना चाहूंगी अगर आप होते हो मुझसे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप किसी चीज में टाइम दे रहे हो ना, तो इट विल कम बैक एट एनी कॉस्ट इन 1 डे, डेफिनेटली आप जरूर देखना, वो जरूर पे ऑफ होके आता है। एंड सबसे बड़ी चीज है कि हमेशा ईमानदारी से, क्योंकि कभी तुम ऐसी चीज मत करना कि इसको लेट गो करके, इसको लेट डाउन करके मैं थोड़ा सा अचीव हो जाऊंगा, नेवर एवर डू लाइक, जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर तुम किसी को नीचा दिखाओगे ना, तो इट विल डेफिनेटली, यू नो, कर्मा बूमरैंग, इट विल कम बैक, जस्ट बिकॉज हमेशा जो करो अपनी ऑनेस्टी से करोगे ना, तो नो वन कैन स्टॉप यू। एंड द लास्ट सेक्शन भाभी सर सेड कि अगर कोई चीज स्टार्ट करिए उसको फिर स्टार्ट कर दो, नहीं छोड़ देते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं। मैंने अपनी कॉन्फिडेंस से सीखी कि हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो जब तक वो फिनिश ना हो जाए ना, तब तक छोड़ना नहीं है, छोड़ना ही नहीं है, तो करना ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, गिव अप कर जाते हैं। मैं उनको ये नहीं बोलूंगी कि उनका मन नहीं करता या फिर वो ऐसे ही है, बट नहीं होता है कभी कभी लोगों से। मैं भी एक टाइम में ऐसे हो जाती हूँ कि स्टक, कि नहीं अब लेट इट बी, नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है। फिर वही जैसे आई टोल्ड यू, माय मम्मा, ओ माय गॉड, शी इज सो मच सपोर्टिव, अल्हम्दुलिल्लाह, शी वाज लाइक कोई बात नहीं, हो जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेते हैं, एवरीथिंग इज टेकिंग टाइम। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, कि हर चीज टाइम लेती है। और ये नहीं है कि हमारे मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते होंगे यूट्यूब में, आपको नहीं पता गाइस एक सब्सक्राइबर क्या वैल्यू होती है, जिसके मिलियंस में होते हैं उनके लिए कोई वैल्यू नहीं होती, बट मेरे लिए यू नो 854 से 853 भी हो जाता है ना, तब भी इतनी प्रॉब्लम होती है कि यार क्यों हुआ है कि सब्सक्राइबर कम, क्या प्रॉब्लम थी, क्या था मेरे ऐसे कंटेंट में ऐसा जो इनको पसंद नहीं आया और जिन्होंने अनसब्सक्राइब किया। और ऐसी सेम खुशी तब होती है कि जब उसी कंटेंट से एक सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं ना, ओ आई फील लाइक मोटिवेट कि ठीक है कोई बात नहीं, करना है, एक ही पड़ेगा, इट्स बिग डील। किसी ने सब्सक्राइब करने का टाइम भी निकाला है, 1 सेकंड भी निकाला है, तो वो भी उसके लिए तू कर। अगर जितने लोग हैं तेरे पास सब्सक्राइबर, उनके लिए तू कर,
तो दिस इज व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि नेवर स्टॉप। गाइस आपको नहीं पता नहीं मेरी आवाज कैसी आ रही होगी, प्लीज बेयर विद मी। नहीं, I'm audible, very clearly audible, like listening to you. I'm audible to you guys and you too. Yes. So, Shamina, it's not a big question, but for my suggestion, I think I should ask to you because I just as I'm an observer, so मुझे पसंद है ये क्वेश्चन सबसे पूछना। I know we are not that much elder कि हमें experience हो गया होगा, but मैं I'll ask you. So अब तक का जो like as you मैं age नहीं बोलूँगी, but अभी हम जितने बड़े हो गए हैं बचपन से लेकर अब तक का, what you experience and what you learn from life. From life. So what many. Till now. So many things, Lachi. I even can't tell you. Just because सबसे बड़ी चीज है कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत। इवन आप इसको बोलो फाइनेंशियली बोलो, इमोशनली बोलो, मेंटली बोलो, या फिर फैमिली के ऊपर देख लो कि यू नो मेरी मम्मा के लिए फॉर एवरीवन, जस्ट बिकॉज माय भाई इजंट हियर ऑन दैट टाइम, वो बाहर थे, उनको कुछ मतलब ये बस है कि बहुत ज्यादा खत्म चीजें हो गई थी कि लाइक यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ मदर, है ना। तो उस टाइम बस मेरे को उस टाइम क्या था कि शमीना यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी स्ट्रांग। ऑन दैट टाइम जस्ट मुझे लग गया था कि नहीं, हम सोचते कि नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे यार, मैं कैसे जाऊंगी रात के 3 बजे अकेले, वो भी नोएडा की तरफ, एकदम खाली रोड, हाउ कैन आई सर्वाइव, कैब वाले, क्योंकि यू नो इट। और उस टाइम मैंने जो स्टेप्स लिए, आई जस्ट टुक माय मॉम अलोन देयर, हॉस्पिटल्स को घुमाना, ब्लड लेके आना, ब्लड देना, एंड इट वाज सो मच स्ट्रगलिंग। बट वही बोलते हैं ना, हर एक चीज तुमको कुछ ना कुछ सिखा देती है। तो तब से लेके अब तक आई जस्ट नेवर गिव अप, क्योंकि चीजें तुमको स्ट्रांग बनाती है। तुम कभी स्ट्रांग ऐसे नहीं बनते, तुमको सिचुएशन से स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि बहुत चीजें अब ये फिर अब जस्ट आई जस्ट गिव एग्जांपल ऑफ पेंडेमिक, बट ऐसी चीजें कभी किसी की जिंदगी में फेलियर आता है, लोग गिव अप कर जाते हैं, नहीं हम नहीं करें। बट गाइस मैं आपको जरूर एक चीज बताऊंगी कि आज के टाइम में क्या है कि लोग जो भी अब बिगनर्स है, बिगनर इन द सेंस कि जब जिसकी अभी 12th खत्म हुई है या कुछ भी हुई है, तो दे आर जस्ट लाइक ओके हमको बीबीए करना है, हमको बीसीए करना है, हमको बीकॉम करना है, गाइस करो ऑफ कोर्स, जस्ट बिकॉज़ डिग्री होना बहुत जरूरी है, बट यू हैव टू टेक अ साइड ऑप्शन एट एनी कॉस्ट, राइट। क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। इट इज वो ये बहुत बेवकूफी वाली बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एंड टिल मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो चीज रुक गई, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि डिग्री इज जस्ट अ पेज जो तुम्हारे किसी लॉकअप में बन जाएगी, उसके बाद तुम सोचोगे ओके अब हम चलते हैं कुछ करने के लिए। नहीं गाइस, यू ऑलरेडी वेस्टेड 3 years, यू नो 365 डे इन 1 year, यू नो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। अगर आपके पास अलग अगर ऑप्शन है ना, तो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। एक सेकंड ना, so as according to your experience, what advice or what you know to give you the to the student who just coming pass out the 12th and going the college life, so what advice you have to do them, like what should they करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, right? So you know, according to your experience, so as far as my perception, देखो बताओ एक बात बताती हूँ कि जो भी अपने प्रोफेशन में नो कभी खुश नहीं रहता, बोलता है यार ये मत करियो ये करियो, ठीक है, किसी को दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू से सेम थिंग टू मी कि आई नेवर एवर सेड दैट कि नहीं मेरा प्रोफेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये कभी मत करना। आई ऑलवेज से टू कि अगर तुम लोगों को मेडिकल लाइन में जाना है तो गाइस आप ये मत सोचो कि यार मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। गाइस आप अगर चीजें ढूंढने में जाओगे ना तो तुमको कुछ भी मिल सकता है अगर आप। और सबसे बड़ी चीज है कि लोग इतने पागल है कि लोग डायरेक्ट जा रहे हैं कि हम नीट क्लियर कर लेंगे यार, हम नीट क्लियर कर लेंगे। ऐसा उतना करो ना जितना आप लोग कर पाओ, क्योंकि आपको लोगों को क्यों दिखाना है, आपको लोगों को दिखाने के लिए क्यों करना है, करो वो जो तुम कर सको। क्योंकि ना करने वाला नीट वाला बंदा भी अपने 7 साल नीट में दे रहा है, ठीक है, और जो ना करने वाला था वो भी अच्छा खासा अपना 40-50 कमा रहा है, इसको तुम कुछ नहीं समझ रहे थे, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि उस चीज में जाओ कि जो इजी हो, जल्दी करो, जिसमें अर्निंग जल्दी हो। क्योंकि आज के टाइम में कहीं भी आप अपना सीवी लेके जाओगे ना वो तुम्हारी डिग्री मांगेगा, ना वो तुमसे पूछेगा कि तुमने क्या पढ़ा है, तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे, कहाँ आए थे। उसके सिर्फ एक सिंपल लाइन होगी कितने साल का एक्सपीरियंस है भाई आपको, ओनली वन थिंग। फिर क्या बोलोगे कि यार मैंने तो अपने 3 साल अपने कॉलेज को दे दिए, 2 साल मैंने अपने नीट में निकाल दिए, दिस इज व्हाट आई डन। तो गाइस जितना हो सके आप साइड बाय साइड लेके चलो, और जितना हो सके आप लोग अपना एक्सपीरियंस लो, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर। अगर आप कहीं दिखाओगे मेरा अपना 4 साल का एक्सपीरियंस ना, और अब दिखाओगे कि हाँ आई जस्ट डन नीट क्लियर, तो वो भी नीट वाली को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा कि भाई अभी बिगनर है बस, राइट मीना। सो तुम्हारी बात से मुझे एक बात याद आ गई है। अभी मैं कल अपने कॉलेज में थी, सो आई मेट माय सो मेनी न्यू जूनियर्स, तो उनको अगर मुझे देख रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड यू एडवाइस बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस, आई बीन थ्रू द 4 years ओवर देयर। अगर आप लोगों को हमारे वेकेशंस होते हैं, हमारे बहुत वेकेशंस होते हैं, तो आई सजेस्ट टू गाइस कि कहीं ना कहीं से ना इंटर्नशिप करना स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग। अपनी वेकेशन को एंजॉय करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन साइड बाय साइड टू यूटिलाइज करो एज अ ट्राई टू यू नो उसको जनरेट करो कि तुम्हारी वहां से इनकम है। इनकम इसलिए बोल रही हूँ कि अगर पैसे आएंगे तो तुम उससे मोटिवेट होगे, जो कि मेरा मेन चीज नहीं है। मेन चीज मेन ये है अगर तुम फ्रीलांस करते हो, क्योंकि हम स्टार्ट से ही सीखते हैं। अगर आप स्टार्ट अच्छा करोगे तो जब हम बड़ी चीज करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी वो कॉन्फिडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम अभी जो कर रहे हैं ये मेरा इनिशियल है, आप लोगों का इनिशियल है, बट एक टाइम ऐसा आएगा वो हमें उतना कॉन्फिडेंट डेवलप हो चुका होगा कि हम बड़ी चीज को इजीली टैकल कर पा रहे हैं। अगर सोचिए बड़ा करेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो गाइस जो लोग कॉलेज में हैं, स्पेशली फॉर नेट, तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगी गाइस प्लीज, अगर आपको वेकेशन मिलता है स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग और द इंटर्नशिप। यहाँ से मुझे कितनी इनकम मिल रही है
नेवर एवर से, जस्ट बिकॉज आप वहाँ पे इन्वेस्ट इतना करो कि आपको कितना मिल रहा है उधर से, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर। आप एक बार सोचो कि मैं 10,000 कमा लूंगा और वहाँ पे आपको 4,000 मिल रहा है, तो उसको लेट गो मत करो, क्योंकि आपको वहाँ से 4,000 मिल रहा है बट उसके साथ साथ 10 टाइम्स मोर एक्सपीरियंस मिल रहा है। क्योंकि ये चीज मैंने बहुत फेस करी है। आई ऑलरेडी वर्कड ऑन मैक्स, Fortis, Rajiv Gandhi and so many hospitals, but Shaki, there is so many things like कि वो तुमको स्टार्टिंग के 3,000 देंगे, 4,000 देंगे, बट वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस लेटर बन रहा है ना, which is matter। पैसे मैंने कमाए, वो आने जाने में, खाने पीने में उड़ गए। इट डज नॉट मैटर कि हमने कहाँ इन्वेस्ट किया, हम इतने बड़े इन्वेस्टर हैं कि ये वाला शेयर खरीदा यहाँ पे लगा दिया, नो, ठीक है। तो मेन थिंग इज दैट कि एक्सपीरियंस मैटर। चाहे क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे से पकाएंगे, वो मैं आपको ये भी बोल रही हूँ कि आपको वो लोग अच्छे, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, बहुत अच्छे, चाहे कितना ही बड़े प्रोफेशन हो। एज अ निफ्टियन लाची से आप पूछ सकते हो कि उसने भी काफी चीजें अपनी लाइफ में फेस की। एज अ लैब टेक्नीशियन यू कैन आस्क मी, रुला देते हैं, रुला मैंने देखा है कि रुला देते हैं इंसान को, बट वो आंसू वर्थ इट होता है। एज आई टोल्ड यू कि इस पैंडेमिक में जब सब लोग घर में थे, अपने बंद थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, ऑन दैट टाइम पीरियड आई जस्ट हैव टू प्राउडली से दैट कि आई वर्कड ऑन दैट टाइम। आई जस्ट डू एवरीथिंग व्हाट आई वांट टू डू ऑन दैट टाइम। आई हैव माय ओन कार्ड, हॉस्पिटल्स कार्ड, आई कैन गो एनीवेयर व्हेयर आई वांट टू गो। आई कैन से प्राउडली दिस बिकॉज़ जब इतना अच्छा लगता था ना लाची, जब भी हम मेट्रोज में जाते थे या फिर कहीं भी जाते थे, जस्ट से कि हॉस्पिटल स्टाफ को इतना थैंकफुल बोलते थे उस टाइम पे कि दे आर वर्किंग फॉर अस। उस टाइम हमारी इतनी नींद रहती थी कि हम 12-12 घंटे की शिफ्ट करें, 8 to 8, मॉर्निंग आना है, सोना है, फिर उठ के ये सोचना है कि रेडी हो जाओ, फिर निकलना है। बट वो जो एक लाइन आती थी ना मेट्रो में, जो हम सुनते थे कि वी आर सो ब्लेस्ड और थैंकफुल कि एज अ नर्सिंग और एज अ मेडिकल स्टाफ, तो उस टाइम बहुत मजा आता था सुन के कि ओके, मतलब वो तो होता है कि मतलब ठीक है, वर्थ इट है। इट इज जस्ट लाइक दैट, caring someone to another key of या कंसोल की मैं उनको बहुत अच्छे से बोल रही हूँ कि डोंट वरी, वी आर विद यू, यू आर नॉट फैमिलीज हियर बट स्टिल वी आर विद यू, डोंट वरी। एंड वो लिटरली रोए है लाची, लिटरली यू नो, उन्होंने कहा कि अब हम लोग जाने वाले हैं, स्टिल यू नो, स्टिल आई एम जस्ट थिंक अबाउट, मैं रो जाती हूँ कि उनको पता है कि उनकी डेथ उनके सामने है और वो उस चीज से डील कर रहे हैं। वी शुड से थैंक्स टू गॉड कि अभी भी हम लोग इस पैंडेमिक को छोड़ के हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। कुछ तो हम लोगों ने ठीक किया होगा कि जो उसने, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे इतने अच्छे काम है, बट एज हमारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग से हम लोग यहाँ पे, यू नो, कि अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। एक ही चीज है, जैसे मैं लाची आपको भी बोलती हूँ और अपने हम लोग अप्लाई करते हैं चीज में कि अच्छा करोगे ऑफ कोर्स अच्छा होगा। लोग कुछ भी करते हैं, डज नॉट मैटर, ठीक है, लेट इट बी। That's the be real is an important thing. Yeah. Just be real, just be you. Exactly. Don't go about my life. Thank And you I for hope you like having me in your podcast. I just so feel good. एज अ बिगनर ही हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग भी आपकी एज के हैं, सेम एज के, यू नो लाची, ऑफ कोर्स यू एग्री विद मी, क्योंकि हम लोग को भी हम ही स्टार्ट कर रहे हैं, हमको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि हम बहुत तजुर्बा हो रखा है हम लोगों को, नहीं, बट स्टिल अगर कुछ भी हमको करना है ना कर ओपनली। Yes, Samina. So thank you, Samina. Thank you so much to join my live. So yeah, we should say bye to everyone. So guys, thank you guys to stay with me here. I hope you liked the session and you got some information. So the topic was today is a career with the career. You can start. Actually, you can start your passion. Then after some time, if you continue with it, it can automatically become your profession. Right, guys? So I hope you liked this show. So see you again in the next time, same place, 8 p.m. only on the Lachi Life Show, where we meet experts and the entrepreneurs. Till then, guys, bye bye. Take care. See good, be real, and be positive. Bye bye, guys. Thank you so much for everyone. Bye bye.